Okay. So today we will study this chapter of coding decoding. Now what happens, पहले ये समझते हैं कि क्यों अपन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं. सबसे पहली तो चीज ये होती है कि this subject has a lot of application. Like if I talk about computers, see, I'm taking your class on a laptop, and on my side there is another device that I'm using to write. So these devices have some codes. मैं यहाँ से कुछ लिखता हूँ, वो मशीन में जाता है as a code, and then finally the output is there. Although we are not going to study this machine coding here, no, but that is also a form of coding. What is the relevance of this topic in reasoning? Why that topic is being taught? Because after some time, after few years, आप लोग जब graduation, after completing your graduation, some of you will go to say ministries, some of you will go to say IB and other department, in intelligence bureau and other department. तो वहाँ पे कई सारी जो information होती है, that is in the form of encrypted form. Encrypted form means, suppose I am in one ministry, I am in Ministry of Defense, and my friend says Shrey is in Ministry of IT. I got some information that we can have cyber attack, but how I will inform to Shrey? Because if I am getting somebody's information, somebody can also get my information. So if there are chances, so I will say him in coded language. I'll talk to him in coded language. That is what is the relevance of this topic. That is what is the relevance of this topic. We talk in coded language. मैं आपको डायरेक्टली बात नहीं बताऊंगा, मैं आपको कोडेड लैंग्वेज में बात बताऊंगा. So in order to understand this, we should learn this subject. We should learn this subject. We should learn this topic. So this is what is the relevance of this topic. But यहाँ पे हम उतने हाई लेवल की कोडिंग नहीं करने वाले हैं. We are going to study some very simple things here. लेकिन हाँ, these simple things only will form the basis of whatever we are going to study in the future. It will form the basis. तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे letter coding. Then I will read. Then I will study letter number coding. Then I will study substitution coding. Finally, I will study puzzle-based coding. And in the last, I'm going to study column coding. This is what I'm going to do in this chapter. So let us get started. The first topic that, okay, again starting the topic, before starting the topic, again this thing is very important. ये जो ABCD का चार्ट है, इस चार्ट को अपने घर पे अपने सामने लगा के रख लेना. This is very important. The position, the numbers has to be very important. So in the next class, I will tell you this chart in some another form. फिलहाल आज की क्लास में इस चार्ट को ऐसे ही एडजस्ट कर लो. नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा और आगे बताऊंगा, और जो भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, दैट टॉपिक विल बी मोर क्लियर once we will complete this sequence and series chapter of your mathematics. तो फिलहाल वो चीजें अभी की नहीं है, आगे देखते हैं. Next, I am having now let us discuss about this coding and decoding things in detail. So what happens in coding? Actually, alphabets, words, letters, numbers, they are replaced by certain other alphabet, letters, numbers, symbols, etc. according to some specific rule. जो भी coding होती है वो किसी specific rule की वजह की के तरीके से होती है. To solve these type of questions, we have to detect the rule and answer the questions. ये तो हो गया भाई coding में.
And decoding, what is this decoding? Decoding का मतलब क्या होता है? Decoding is a method to find the meaning of something that is being written in a code. आपके पास अगर कोई कोड में लिखा हुआ है, so decoding is a method by which you can find the meaning of whatever has been written. अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आपके पास अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स के फॉर्म में ही चीजें लिखी होंगी. सर, कैन यू गिव मी सम एग्जांपल? Yes, I will give you some example. Let us come to this page. I will give you some example. If JL, if JL is equal to, if JL is equal to, no, not JL. I'm sorry. थोड़ा गड़बड़ हो गया. The question is, sir, the question is, if IJ is equal to 1729, if IJ is equal to 1729, then my dear friends, you have to tell me the value of DE. There is no option here. You have to think and you have to tell me what will be the value of DE. सोचो जरा और बताओ. ओहो, आंसर. आर यू श्योर सुने? सर पर वो तो सर कितने सारे आ सकते हैं. कितने सारे आ सकते हैं? नहीं बेटा, मतलब थोड़े, कितने सारे नहीं, मतलब थोड़े. जितने आ सकते हैं उतने बताओ मेरे को. ओके सर. जितने आ सकते हैं उतने बताओ मेरे को. सुनो, आर यू श्योर अबाउट योर आंसर? आई एम नॉट आस्किंग यू द रीजन. आई एम जस्ट आस्किंग, आर यू श्योर अबाउट द आंसर? यस सर, 100%. 100%. वेरी गुड, वेरी गुड. वंश, आर यू श्योर अबाउट योर आंसर बेटा? वंश एंड श्रेय, यस सर. सोच लो, गलत आंसर मत देना, बहुत डांट पड़ेगी. सर अगर आंसर गलत है तो फिर सर शायद आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है. इतना कॉन्फिडेंस? हाँ सर, सही है. इतना कॉन्फिडेंस कि सर अगर आंसर गलत है तो आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है? हाँ सर. अच्छा जी, तो तीनों का आंसर एक ही है, ये कैसे पता भाई? तुम्हारा, वंश का और सुनय का, तीनों का आंसर अलग भी तो हो सकता है. एनीवेज, चलो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, you guys have given the correct answer. Vansh, Shrey, Sunay, and then Ashika, Anshika, and this boy Shubham. You guys have given the correct answer. Very good. I'm very happy. किया क्या मैंने किया क्या? सुनो, मैं इस पेज पे आपको जानबूझकर लेकर आया था क्योंकि मैं चाहता था कि आप यहां से कुछ हिंट लो. जैसे मैंने ये नंबर 1729 लिखा, देखो, if your alphabet is written in terms of numbers, then definitely you have to deal with the position of the alphabets. तो अब आप जाओगे यहाँ पे, आई की पोजीशन आपको पता है कि आई की पोजीशन 9 होती है और जे की पोजीशन 10 हो सकती है. अब इन दोनों नंबर्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट सच दैट द रिजल्ट इज 1729. माय डियर फ्रेंड, एडिशन से तो मुझे मिलने वाला नहीं है. एडिशन से तो मुझे 19 मिलने वाला है, सब्ट्रैक्शन से मुझे 1 मिलेगा. दोनों को स्क्वायर करके अगर ऐड करता हूं तो मुझे 181 मिल रहा है. तो एक बार क्यूब करके ऐड करके देख लो. और 10 11 तक का 1729 11 तक का, 12 तक का क्यूब और 25 तक का स्क्वायर मैंने आप लोगों को बहुत पहले बोला था याद करने के लिए. तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिल रहा है 1729. खत्म क्वेश्चन. क्वेश्चन इज ओवर.
4 डी की पोजीशन होती है 4, ई की पोजीशन होती है 5, 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 189. That will be your answer. Simple, as simple as that. Now another modification in this question can be, my dear. सर हाँ बोलिए. सर मैंने तो ये क्यूब वाला नहीं सोचा, मैंने ये आई और जे की वैल्यू को प्लस किया तो उसका 19 आ रहा था, और फिर वो वाले में मैं कंफ्यूज हो गया फिर। तो बेटा आपको पहले आई और जे की वैल्यूज को कुछ भी करके आपको 1729 लाना चाहिए था ना. अरे नहीं सर, मैंने वो वैल्यू को ऐड किया तो वो 19 आई, फिर आई और जे की पोजीशन के नंबर को ऐड किया तो वो भी 19 आया, तो मुझे लगा उसमें कुछ रिलेशन वो आप कुछ भी करो, द पॉइंट इज आई और जे की वैल्यू वंस. देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि सर यहाँ तो कोई भी लॉजिक हो सकता है, तो हाउ आई एम सपोज टू, हाउ आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, आई कांट मैच द एग्जामिनर. सी आई एग्री यू कांट मैच द एग्जामिनर. You can't match the examiner, I agree with you. But the point here is, my dear friend, please try to understand. The point here is, you can at least I और J की आपको position पता है 9 and 10, that is the only information that you have. Now, इस 9 और 10 को use करके आपको 1729 तक जाना है. कुछ भी करो, that is your that is your domain. आप कुछ भी कर सकते हो. You are free in it. You are your master. लेकिन the thing is, the result you should get as 1729. जो भी लॉजिक अप्लाई करो, सेम लॉजिक अप्लाई करके यहां पे आंसर लो, एंड 9.99% आप 99.9% चांसेस में ऐसा होगा कि आपने जो लॉजिक यूज किया है और एग्जामिनर ने जो लॉजिक यूज किया है, द आंसर विल मैच. 99.99% केसेस में ऐसा होगा. 0.01 केसेस जो होते हैं वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन होता है, उसमें फिर कुछ और सोचना पड़ता है. लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं. हम जब नंबर सीरीज पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस हमें बहुत मिलेंगे. वहां पे इस चीज की प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है कि 50% केसेस में आपका आंसर और जो ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है वो दोनों मैच ही नहीं करेगा. अगेन दैट इज अ डिफरेंट थिंग. That is a different thing. Now I want to ask one more question. चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं. If the value of Q and Q and yes, if the value of Q and R is 1729, if the value of Q and R is 1729, then my dear friends, you have to tell me the value of T and U. You have to tell me the value of TU. If the value of Q and R is 1729, then you have to tell me the value of T and U. Now this is a open question for those who gave the correct answer of the previous question. चलो बेटा बताओ जरा. सर आंसर आता है. क्या आंसर आया? 341. 341. हाँ. अच्छा 341. Okay. Devansh is saying okay. Vansh is saying 5. Okay. देखो भाई, ज्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए मैंने क्या किया है, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम रिवर्स ऑफ द ऑर्डर, तो Q की जो पोजीशन होगी डेट विल बी 10th एंड R की जो पोजीशन होगी वो 9th होगी. इफ यू स्टार्ट फ्रॉम रिवर्स, देन Q की पोजीशन होगी वो 10th होगी और R की जो पोजीशन होगी वो 9th होगी. काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो Q की पोजीशन हुई 10th,
आर की पोजीशन हुई 9th, दोनों के नंबर्स को पोजीशन को क्यूब करो, रिजल्ट आया 1729। अगर आप रिवर्स से चालू करोगे, टी की पोजीशन हुई 7, एच की पोजीशन, यू की पोजीशन हुई 8, दोनों के नंबर्स का क्यूब करो तो योर आंसर विल बी 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब, वॉट एवर इज द आंसर दैट विल बी योर आंसर। ठीक है दोस्त? 7 क्यूब प्लस 6 क्यूब नहीं होगा? 7 क्यूब प्लस 6 क्यूब होगा क्या? नहीं यार, 6 क्यों होगा? 1 2 3 6 होगा ना? 7 क्यूब, हाँ सॉरी 7 क्यूब प्लस 6 क्यूब होगा, आई एम सॉरी, इट विल बी 7 क्यूब प्लस 6 क्यूब। लॉजिक समझ गया ना? तो शायद कुछ लोगों ने आंसर सही दिया है, जिन लोगों ने सर आंसर, 559। हाँ ठीक है, जो आप लोगों ने जो आंसर दिया वो एकदम सही दिया, वेरी गुड। 559 इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगा था वो 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब होगा, सॉरी, थोड़ा सा एक्साइटमेंट में गलत लॉजिक देख लिया, बट लॉजिक समझ में आ गया ना आप लोगों को? ये क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने बैठे बैठे बनाया है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द रामानुजम नंबर, राइट? यस, दिस इज द रामानुजम नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। So let us start the topic. Topic अपन ने पढ़ ही लिया है. That was the most difficult part that we were doing. Now we have to solve the questions. Letter coding की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि a letter in a word is replaced by certain other letters according to a specified rule and to form its code. Now what we have to do is we are required to detect that coding pattern and answer the questions. अब देखो भाई, हाँ ठीक है, मुझे पता है आप लोग को आंसर्स आते हैं, let us wait. हाँ, the first question is saying if Kumar is coded as LVNBS, कुमार इज कोडेड एज LVNBS। अच्छा, तो मुझे बताना है हाउ विल यू कोड इमोशनल। इमोशनल को कैसे? नंबर बी। अरे रुक जाओ यार, बोलने तो दो मुझे, क्या चाहते हो मैं चला जाऊं? बोलने तो दो मुझे। देखो, कुमार की इज कोडेड एज LVNBS, दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखो तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम इंक्रीजिंग द पोजीशन बाय 1। के के बाद L आता है, U के बाद V आता है, M के बाद N आता है, A के बाद B आता है सर, और R के बाद S आता है। What I have done is I have increased the positions by 1. तो ये जो वर्ड है इमोशनल, यहाँ पे भी what I will do is I will increase the positions by 1. E के बाद F आएगा, M के बाद N आएगा। अब देखो यहाँ पे अपन थोड़ा बहुत टाइम अपना सेव कर सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हैं सर? मुझे ये पता है कि ऑप्शन नंबर सी और डी तो आंसर होगा ही नहीं, या तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा या तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ई के बाद सर एफ आता है, एम के बाद सर एन आता है, ओ के बाद सर पी आता है। ठीक है, तो अब देख लो एफ एन पी किस में है? ए में नहीं है, ये दोनों पहले से ही रिजेक्टेड हो गए, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दिस इज हाउ यू कैन save your little bit of time. अगला क्वेश्चन करो। इफ जापान इज कोडेड एज KCSES, then you have to tell the code of castle. सर ऑप्शन नंबर डी। देखो, जापान इज कोडेड एज KCSES मतलब क्या हुआ सर? जे के बाद जे के पहला वर्ड के +1 किया, ए के बाद सी यानी कि +2 किया। सर वो एडजेसेंट लेटर्स के डिफरेंस +1 से बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी। पी के बाद QRS किया, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे सब्सिक्वेंट लेटर्स हैं, जो डिफरेंस हो रहा है वो +1 से इंक्रीज हो रहा है। तो सर सी के बाद कैसल में पहला वर्ड डी होना चाहिए, उसके बाद सी होना चाहिए। DC को देखो, DC सारे ऑप्शंस में है, उसके बाद STU होना चाहिए, तो STU एक मिनट, BC फिर S के बाद TUV होना चाहिए। अब देख लो भाई V किस में है? DC के बाद V किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, रेस्ट यू आर नॉट सपोज टू डू। इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि आपको वर्ड्स बहुत बड़े बड़े दे दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज होते रहो और आप ढूंढते रहो। आपको वर्ड्स बड़े बड़े दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज होते रहो और आप ढूंढते रहो। इतना नहीं जाना यार, इतना लंबा कौन करेगा? आई एम नॉट ए फूल।
I will just look at the specified thing and I'll mark my answer. जैसे देखो ये painter is coded as NCGPRGP, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, जो गिवन वर्ड है और जो उसका कोड है वहां पे कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, बहुत बुरा फंसोगे। जो गिवन वर्ड है और उसका कोड है, यहाँ पे कोई चालाकी करने की मत कोशिश करना, बहुत बुरा फंसोगे। तो अब देखो मुझे पता है कि यहाँ पे दे आर गोइंग एज एन के बाद OP, मतलब P से -2 लेटर्स किया तो मेरे को O मिला, A के बाद मैंने +2 लेटर्स किया तो मेरे को C मिला। अब G के पास आते हैं, अब अगले वर्ड के पास आते हैं I के बाद I से मैंने -2 लेटर किया तो मुझे G मिला। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, आई एम डूइंग -2 +2 -2 +2। तो अब यहां देखो पहला लेटर P होगा, दूसरा लेटर G होगा, तो P और G मेरे ऑप्शन नंबर सेकंड B, C और D में है, उसको छोड़ दो। उसके बाद दो लेटर पहले मतलब Y, तो PGY हो गया। S के बाद TU, अब मिल गया मेरे को, या तो ऑप्शन नंबर C होगा या तो ऑप्शन नंबर D होगा। O से पहले के दो लेटर्स MNO, O से पहले के दो लेटर्स MNO, तो my answer will be option number C. This is how I'm about to solve these questions. My answer will be option number C. So the correct answer of this question will be option number C. -2 +2 -2 +2 करते चला भाई, जो जैसे बोल रहा है वैसे उनकी बात मानते जाओ। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन हो ही चुका था। अगले क्वेश्चन को करते हैं। Now if national is written as MZGRLMZO, then how will you write this word Jaipur? अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था यार। सर मेरा आया QZRKFI, ऑप्शन ए। Okay, QZR. See, the logic here is, let me tell you the logic. सर हमें कैसे भी करके +27 आंसर लाना, 27 आंसर लाना है, वो कर सकते हो। या एक दूसरा लॉजिक ये है, इफ यू सी द अल्फाबेट्स ABCDEFGHIJKLM और M के नीचे NOPQRSTUVWXY एंड Z। अब देख लो भाई, नेशनल N के नीचे वाला वर्ड है M, तो नेशनल की जगह N की जगह M लिखा है, A की जगह Z लिखा है, T की जगह G लिखा हुआ है। ये T है, T की जगह G लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो रिवर्स ऑर्डर में अपन ने जो अल्फाबेट को इस तरीके से लिखा, दैट इज द ऑर्डर। तो अब आपको क्या करना है, वर्ड्स लिख दो। J के नीचे वाला वर्ड क्या है, Q। A के नीचे वाला वर्ड क्या है, Z। I के नीचे वाला वर्ड क्या है, R, JAI। P के ऊपर वाला वर्ड क्या है, K। तो आपका जो ऑप्शन होगा QZPK, that will be the answer. So your answer will be ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, QZPK। ये sorry, QZRK, that is option number A. A will be the answer. Now see, you can't be sure क्योंकि QZRKFI, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर A will be your correct answer. So the correct answer of this question will be option number A. ठीक है, now let us move ahead. I thought it was written as this. P लिखा हुआ था, मुझे ऐसा लगा। The next question is, if tree is coded as 7100, frog is coded as 2159, and free is coded, how is free is coded in that language? चलो भाई, 2100 इसमें कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पे क्या करना है, इन करस्पॉन्डिंग जो F का जो कोड है, डेट इज 2, R का कोड है 1। यहाँ से भी अब यहाँ पे देखो
एक वर्ड ऑफ कॉशन है, सिंस द वर्ड फ्रॉग ऑल्सो हैज the word frog also has r, the word tree also has r, तो जो भी कॉमन नंबर होगा that will be the code for r. ऐसा नहीं कि रैंडमली फ्रॉग से देखकर बोल दिया कि फ्रॉग का कोड 1 है और ट्री का कोड अपन ने डायरेक्टली ट्री में उसको नहीं मैच किया, यहाँ पे नहीं हो रहा है. आगे जब हम लोग कॉलम वाइज कोडिंग पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो यहाँ से अपन ने देख लिया कि फ्री का कोड निकालना है. सो दैट विल बी 2100. फ्री के मार्क्स हैं 2100 विल बी द आंसर. नेक्स्ट, in a certain code, C is coded as 0, E is coded as 7, T is coded as 4, I as 9, P as 1. How is the word 1904537 is written? कुछ नहीं करना है, जो कोड है उसको लिख दो. पहला 1, तो 1 पे आ गया P. अब P से स्टार्ट होने वाले नंबर्स देख लो, तो या तो A होगा या तो B होगा या तो D होगा. दूसरा होना चाहिए सर ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी. सो यू आर सेइंग दैट ऑप्शन नंबर बी, तो चलो आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, मान ली भाई तेरी बात कि इट विल बी ऑप्शन नंबर बी. Okay, so option number B will be the answer. Next question, if ox is coded as 39, what will be the code for lion? Now tell me what will be the code for lion. I'll ask this question Sir, from 50. हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? Sir, option D, 50. 50. How you got as the option number D? Can you please tell me? Sir, in ox, the letter O and X would be represented by the numbers 15 and 24. So when we add बस 15 and ठीक है. 24, we get 39. देखो यहाँ से कुछ नहीं समझ में आ रहा है. 39 कैसे आया, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है. 39 या तो 13 into 3 हो सकता है या कुछ और होगा जो हमें नहीं पता है. अब 13 into एक मिनट 13 into 3 तो हो नहीं सकता है क्योंकि ना O की पोजीशन 13 है ना X की पोजीशन 13 है. व्हाट आई कैन से, इट इज, इनकी पोजीशंस देखो, O की पोजीशन 15 होती है, X की पोजीशन 24 होती है, 15 होती है, 24 होती है. यहाँ से रिवर्स का भी कोई चांस नहीं है क्योंकि अगर मैं रिवर्स नंबरिंग करता तो O की पोजीशन 12 होती और X की पोजीशन तो 3 होती. ठीक है, लेकिन O की पोजीशन उस केस में 12 होता. अगर यहाँ पे मैं बोलता कि ox is coded as 36, then the question would have become little bit different. अगर 15 और 24 है तब तो बहुत बड़ा आंसर आता. तो दोनों को ऐड कर दो, यू आर गेटिंग द रिजल्ट एज 39. अब यहाँ पे सारे के कोड लिख के ऐड कर दो तो परहैप्स यू गाइज आर टेलिंग दैट द आंसर विल बी 50. सो आई एम नॉट राइटिंग, आई एम नॉट डूइंग. अब एक पॉसिबल मॉडिफिकेशन इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि अगर आपको ये ऐसा हाँ बोलिए सर, आप लॉजिक वापस समझाओ ना, समझ नहीं आया क्या बोले. बेटा. इन्होंने, मैं ये बोल रहा हूँ कि O की जो पोजीशन है वो 15 है, X की जो पोजीशन है वो 24 है. 15 + 24 किया तो मुझे 39 मिला. तो इसीलिए ऑक्स का जो ओके सर समझ गया. अब एक पॉसिबल मॉडिफिकेशन इस क्वेश्चन में ये हो सकता है. क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है सर? अगर आपको ये बोलते कि O की पोजीशन, अगर आपको ऐसा बोलते सर कि O की पोजीशन 12 है और X की पोजीशन 3 है, मतलब सॉरी, अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा बोलते कि इफ ox is coded as 36, then how will the word lion will be coded? This is your homework. If ox is coded as 36, then how will you code the word lion? That is your homework. Sir, order reverse करके multiply कर देना. ऑर्डर रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर आएगा डेट विल बी योर आंसर. राइट, जो भी आंसर आएगा डेट विल बी योर आंसर. आपको करना क्या, ऑर्डर रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना है. O की पोजीशन 12 हो जाएगी, X की पोजीशन 3 हो जाएगी. 12 into 3 36 होता है. यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा. नॉट ए बिग डील. नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन. हाँ बोलिए सर. प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे एक डाउट है. हाँ बोलिए. अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ट्री एंड फ्रॉग वाला, उसमें कोडिंग फ्री है तो उसमें आंसर 3100 था या 2100? इसका आंसर 2100. ओके सर. नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन कोडिंग. सब्स्टिट्यूशन कोडिंग क्या होता है भाई? दिस इज द इजीएस्ट ऑफ द थिंग.
easiest of the thing. यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, if paper is Scale. called, अरे रुक जा यार, एक Excuse बार me, रुक जा. sir. हाँ बोलिए. पेपर, सॉरी सर, पेपर Sir, जो लाइव वाला जो क्वेश्चन था सर, उसका आंसर 24,300 है क्या सर? पता नहीं बेटा, वो क्वेश्चन मेरे को भी नहीं पता है, मतलब आंसर मुझे भी नहीं पता. आई कैलकुलेट इट एंड आई टेल यू. बट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपका जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स का जो पोजीशन हमने क्लास की स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसको आप 27 से माइनस करो. जो भी नंबर आएंगे, 4 नंबर्स आएंगे, आप उनको मल्टीप्लाई कर दो. वॉट एवर यू गेट, दैट विल बी योर आंसर. ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं. The question is, now this is the simplest type of question that we can have. The question is saying, if paper is called eraser, eraser is called as bag, bag is called as scale, scale is called as pencil, and pencil is called as paper, what will a person write with? एक पर्सन So, किससे पेपर लिखेगा? पेपर से Paper. लिखेगा, क्योंकि हम लिखते किससे हैं? पेंसिल से लिखते हैं. पेंसिल को इन्होंने क्या बोला है? पेपर. तो हम लिखेंगे किससे? पेपर से ही तो लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, इफ वाटर इज कॉल्ड फ्लड, फ्लड इज, वाटर इज कॉल्ड फूड, फूड इज कॉल्ड ट्री, ट्री इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड वॉल. विन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज फ्रूट ग्रो? फ्रूट किस पे ग्रो करता है? स्काई. ट्री पे. तो ट्री का कोड आसमान क्या पे. है? स्काई. तो आंसर क्या हो गया? स्काई हो गया ना. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर. बात समझ में आ गई सभी लोगों को? yes sir. Yes, sir. वेरी गुड. चलो आगे बढ़े. Okay, now next is puzzle based coding. Puzzle based coding and the column based coding, these are the crux of this chapter. Very important concept, बहुत अच्छे concepts हैं, इनको हमें करना पड़ेगा. देखो क्या होता है puzzle based coding में, क्या होता है. In this type of question, some messages are to be given in the coded language and the code for a particular word or message is asked. ठीक है. आपके पास कुछ कोडेड लैंग्वेज में कोई कोड होगा और आपको उसका किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का कोड आपको पहचानना होगा. नाउ दिस, द कंसेप्ट ऑफ दिस पजल बेस्ड कोडिंग इज एक्सटेंडेड टू द कॉलम बेस्ड कोडिंग. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको पजल में कोड्स लिखे होंगे, वहां पे आपको कॉलम्स में कोड लिखे होंगे. The basis is the same. The method of solving the question is the same. To analyze such questions, any two messages bearing a common word are picked up. इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई भी मैसेज जिसमें कॉमन वर्ड या कॉमन लेटर है उसे उठा लो. कॉमन कोड को वहां से आप देखो कि अच्छा ये वाला वर्ड कॉमन है, तो दिस वर्ड, द कॉमन कोड will correspond to that common word, and इस तरीके से we can decode the message and we can identify whatever is being asked. Let us solve this question. In a certain coded language, 389 means I'm sorry, what happened to this? एक सेकंड रुको यार. There is some issue with my pen. I don't know what is the issue. एक मिनट रुक जाओ. हाँ, the question is saying that in a certain coded language, किसी coded language में 389 का मतलब होता है runs very fast, run very fast, okay? और 964 का मतलब होता है कम बैक फास्ट. तो यहां से मुझे ये पता चल गया सर कि जो फास्ट का कोड है वो 9 है. उसके आगे बढ़ते हैं. 487 मींस रन एंड कम. 487 मींस रन एंड कम. तो यहां से मुझे क्या पता चला कि the word common here is 4 and they are asking me the code for come. तो यहाँ पे the common word is come, so my answer will be 4. So the correct answer of this question will be 4. This is how the questions are to be solved. This was a question of puzzle based coding. Now we will extend this concept to this column based coding. I'm not solving this question.
solve this question on your own. If you don't get it, ask me in the next class, because I want to devote the remaining time to this horizontal based coding. Now this is very interesting. Sir, can you please show the previous question? I did not take the screenshot. This one, हो गया? हाँ सर, हो गया. ठीक है, चल नेक्स्ट. अब यहाँ पे क्या है कि वी आर डीलिंग विद दिस कॉलम कोडिंग. अब कॉलम कोडिंग में क्या होता है, यू हैव टू डिकोड द अंडरलाइंड लेटर्स इन द कॉलम 1. कॉलम 1 में जो भी अंडरलाइंड लेटर्स हैं, इनका आपको इन्हें डिकोड करना है. यू हैव टू टेल व्हाट विल इट्स कोड विल व्हाट इज इट्स कोड. ओके, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं. डिकोड द अंडरलाइन लेटर्स इन द कॉलम 1 फ्रॉम द सेम रो ऑफ चॉइसेस प्रोवाइडेड अंडर कॉलम नंबर 2. ईच small letter in column 2 stands for some capital letter in column 1. However, the small letters in column 2 are not arranged in the same order as their corresponding letters in the column 1. The code is the same for all the terms in column 1. चलो अब इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि how I will solve this question. Let us try to analyze this question. देखो, अगर मैं कॉलम नंबर 1 की बात करूं, कॉलम नंबर 1 में अगर मैं फर्स्ट की बात करूं और मैं सेकंड की बात करूं, तो आई विल फाइंड दैट देयर आर 3 लेटर्स which are कॉमन. कौन कौन से हैं? N, T, B, N, T and Z. N, T, Z and B, N, T, Z and B. There are 4 letters which are common here and they are N, T, Z and B. देखो यहाँ पे क्या है? N, T, Z and B are common. N, T, Z and B are common. If I go to the column T2 and if I found how many common letters कौन कौन से हैं यहाँ पे देखो. The common letters are V is common, T is common, H is common and N is common. अगर मैं, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 की बात करता हूं एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पोजीशन 1 फर्स्ट टर्म एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड टर्म, तो यहाँ पे जो कॉमन लेटर्स हैं कॉलम 2 की बात करो और मैं अगर फर्स्ट और सेकंड रो की बात कर रहा हूं कॉलम 2 में, तो द कॉमन अल्फाबेट्स आर V is common, then I'm having T is common, then I'm having H is common, N is common, बचा क्या? B बच गया. तो the code for H will be B. क्या ये बात समझ में आई सभी लोगों को? Say yes or no quickly. Yes sir. The code for H will be B. Yes sir. Similarly, now I have to find the code for C. तो code for C के लिए, C के code के लिए, now what I will see? Now from here I can also find the code for C, क्योंकि T, H, N और V तो मेरे निकल चुके हैं. T, H, N और V मेरे निकल गए, तो सर C का कोड क्या हो गया सर? W. W हो गया C का कोड. तो ये मुझे पता चल गया. Now again I will go to the other 2. बाकियों के पास जाते हैं. इस तरीके से I can find the code for the other three alphabets also written in the capital letter. So this is how the question is to be done. This is how the question is to be done. This is how the chapter is to be done. The most important thing, the most painful thing in this chapter is the column coding. Column coding is the most painful thing. And the other painful thing is when the alphabets are written in terms of number. जैसा कि मैंने आपको सवाल दिया था 1729 वाला. So these are the 2 most painful things of this chapter. So although the chapter is over from my side, theoretically the chapter is over, but now your task begins. अब आप लोग questions कीजिए. The next reasoning class would be held on probably Tuesday. Today is Friday, so the next reasoning class would be held on Wednesday. आपके पास काफी अच्छा खासा टाइम है
do solve the questions. We will discuss the questions of exercise 1 and exercise 2 of both the chapters. And then in the further class, I will move ahead. Okay. So what I will do is, from my side, I will pick the questions which I think I have some, I think they are some tougher questions. And then I will come to you and I will solve the questions with you. Okay.